Now we are going to start to cover the new topic, Lorentz transformation. Lorentz transformation, a transformation that changes all four coordinate, three space and one time. That means x, y, z into x dash, y, z, z dash and t dash. This is the Lorentz transformation. It is a set of equations which correlate space-time coordinate of an event in space as observed by two observers in different frame of reference moving with constant velocity relative to each other. हमारे पास यहाँ दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस और एस डैश. हमको यहाँ पे स्टडी करना है कि यदि फ्रेम एस कांस्टेंट है और फ्रेम एस डैश वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, और यदि कोई एक इवेंट किसी एक फ्रेम में होता है तो दोनों फ्रेम में जो ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश हैं उस इवेंट को कैसे फिल करेंगे. तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन. तो दिस इज आवर एम टू ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन फ्रॉम वन coordinate to another coordinate. And Lorentz transformation equation are also referred to as relativistic space-time transformation. They are based on two postulates of special theory of relativity. The first postulate, everybody know, the law of physics are the same in all inertial frame of reference. Okay, this law is based on the two postulate of special theory of relativity. The first law that indicate that the law of physics are the same in all inertial frame of reference. As we already discussed in inertial frame of reference, जिसमें हमने कहा था कि जो law of physics है जितने भी inertial frame of reference सभी के लिए एक जैसे ही रहेंगे उसमें फिजिक्स के लॉ. सेकेंड चीज हमने ये फाइंड आउट की थी, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज द सेम वैल्यू इन ऑल inertial frame. The speed according to the Michelson-Morley experiment, we already discussed that, and that experiment to conclude that the speed of light is constant. So on the behalf of this postulate, we can derive the Lorentz transformation, then change the coordinate system from x, y, z, t into the x dash, y, z, z dash, t dash. So here we let us consider the two observer. This is the two observer O and O dash इन सिस्टम S एंड S dash. दो ऑब्जर्वर हैं जो O और O dash हैं जो कि सिस्टम S और S dash में है. सिस्टम S dash V वेलोसिटी से X डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है रिलेटिव टू S. एंड ऑब्जर्वर O एंड O आर एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम S एंड S dash. दोनों ही अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं. तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां से इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको कवर करनी है. तो हमें पता है कि सपोज दैट कि द एक्सेस ऑफ टू कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कोइंसाइड. दोनों ही एक्सेस, ये इन दोनों के बीच दोनों ही t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0 जब है, तो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कोइंसाइड करते हैं. लेट्स ए पल्स ऑफ लाइट बी जनरेटेड एट टाइम t इज इक्वल टू 0. किसी टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे एक लाइट जनरेट होती है एट द ओरिजिन which is spread out in the space. अब हमको ये देखना है कि दो ऑब्जर्वर situated at O and O days are observing the pulse of light. दो ऑब्जर्वर जो O और O days पे situated हैं, दोनों ही उस लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं. Now consider the situation when the pulse reached at point P. Their coordinate system is x, y, z, t, and x dash, y dash, z dash and t dash be the position and time coordinate of
P measured by O and O days in frame and S days. ये जो दो कोऑर्डिनेट हैं दोनों ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हैं। तो जब when the pulse is observed from S, जब पल्स जो जनरेट हुई है उसको यदि हम देखें कहां से, S फ्रेम से, तो देन वी ऑलरेडी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, c इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था हमारा इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस जो था दैट डिस्टेंस इज r, डिस्टेंस तो r अपॉन t. बट वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन इक्वेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू हाफ. सो वी कैन राइट सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ अपॉन टी. और square both the sides, c square is equal to x square plus y square plus, and will be c square is equal to x square y square z square upon t square. Okay, so x square plus y square plus z square is equal to c square t square. This is equation number first. Similarly, when the pulse is observed फ्रॉम एस डैश, उसी पल्स को यदि हम एस डैश पे फ्रेम में खड़े हुए ऑब्जर्वर जो ओ डैश है वो ऑब्जर्व करे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो देन वी हैव एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर. सी डैश स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक इट एज ए सी डैश. सो सी इज ए कांस्टेंट, सी इज constant value. Okay, but we know that this case is throughout the one direction. x डायरेक्शन में ये केस हो रहा है तो हम किस चीज को हम ले लेंगे, y इज इक्वल पैरेलल y के हो गया एंड z पैरेलल हो गया z डैश के, दोनों बराबर हो गए. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यदि हम देखें दोनों बराबर हो गए तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर. तो ये हमको इक्वेशन नंबर हमारी ये थर्ड थी. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ. तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स डैश एंड टी डैश. एज वी ऑलरेडी कंक्लूड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स स्क्वायर तो एक्स डैश की जो वैल्यू इक्वेशन फिफ्थ से हम इक्वेशन 6 में यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इक्वेशन विल भी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू के. ओके, अंदर हम x डैश की जगह हम यहाँ पुट करना है, यहाँ से वैल्यू लिए हैं तो कितनी हो जाएगी k x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश. ओके, सो अब इसको अब हमको करना है, कितना हो जाएगा k स्क्वेयर, ओके, x माइनस वी टी प्लस के वी टी डैश. ये हो गया. तो यदि हम इसको फिर से थोड़ा चेंज करना चाहें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं के वी टी, और इसको हम ट्रांसफर करना चाहें इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो इक्वेशन कितना हो जाएगा ये हम फाइंड आउट करेंगे. तो सपोज दिस इज x इज इक्वल टू के स्क्वेयर एक्स माइनस के स्क्वेयर वी टी प्लस के वी टी डैश.
ट्रांसफर करेंगे इसको साइड तो x माइनस के स्क्वायर एक्स ये आ गया प्लस के स्क्वायर वी टी इज इक्वल टू के वी टी डैश, राइट। तो हम यहाँ से टी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो हम इजिली टी यहाँ से चाहें तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई, एक्स इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर एक्स ये हो गया प्लस के स्क्वायर वी टी इज इक्वल टू के वी टी डैश, राइट। सो टी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी डैश की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, टी डैश तो टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम फाइंड आउट करेंगे टी डैश की वैल्यू जाएगा के टी प्लस 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के वी इंटू एक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7. And according to the second postulate, as we already discussed, the speed of light is constant. So we already discussed the let the light signal be given at the origin O at time t is equal to 0 and t dash is equal to 0. Then that is when O and O dash are coincide. जब O और O dash दोनों एक साइड coincide हो, जब लाइट वहां से सिग्नल ओरिजिनेट होगी, the light signal travel with a speed c which is the same in both the frame. जब लाइट सिग्नल वहां से निकलेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो दोनों के लिए सेम होगी. दैट मीन्स इन फ्रेम, यदि इन फ्रेम में देखेंगे, इन एस फ्रेम में हम केस देखेंगे, इन एस फ्रेम में केस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी टी. एस डैश फ्रेम में यदि हम उसी चीज को देखेंगे तो एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 8th and this is equation number 9th. Okay, so putting the value, इस वैल्यू को ऊपर आप पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास केस आ जाएगा x. x इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था इक्वेशन नंबर्स में देख लें. x इज इक्वल टू क्या क्या चीज हमने ली थी, x डैश इज इक्वल टू क्या था हमारा केस में, और x की वैल्यू क्या थी. दो अलग अलग हमारे पास केस है. x बराबर सी टी. ओके, तो इस केस को हम इस ढंग से डील करेंगे कि दोनों की वैल्यू कांस्टेंट जो वैल्यू है x इजिकल टू सी टी और x इजिकल टू सी टी हम पुट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 9, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 9, नाइन्थ इक्वेशन हमारा था x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश. वी ऑलरेडी फाइंड आउट x डैश. x डैश की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x डैश की वैल्यू थी k x माइनस वी टी. ओके, c t डैश की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, दैट वैल्यू इज के टी. ओके, प्लस 1 माइनस के स्क्वेयर के वी. ओके, 1 माइनस के स्क्वेयर पर के वी एंड सी एक्स. दिस इज द इक्वेशन. तो सॉल्विंग फॉर एक्स, एक्स के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कि वैल्यू कितनी आएगी. सॉल्विंग फॉर एक्स, देन वी हैव कितना जाएगा, आप इसको वैल्यू को मल्टीप्लाइड किए के एक्स, ओके, माइनस के वी टी इज इक्वल टू से के टी प्लस 1 माइनस के स्क्वेयर के वी सी एक्स. एक्स के वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे, इसको इस साइड ले आएंगे तो के एक्स माइनस 1 माइनस के स्क्वेयर अपॉन के वी सी एक्स, देन के वी टी प्लस सी के टी. ओके, तो दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो x विल बी कॉमन. सो k माइनस 1 माइनस के स्क्वेयर अपॉन के वी, राइट. दिस इज c कॉमन द फैक्टर x इज इक्वल टू सी के टी प्लस के वी टी. सो x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी के टी प्लस के वी टी अपॉन
k minus 1 minus k square upon kv to c. Then clear the equation. C t common, so equation will be k plus v upon c into k upon k minus 1 minus k square upon k v c. This one. So x is equal to ct 1 plus v upon c. This equation will be common हो गया. So 1 minus k square upon k square v to c. This one. So ct इसमें से वैल्यू विल बी 1 प्लस v अपॉन c अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वेयर minus 1. Okay, then c upon v. So after solving this equation, comparing the equation, compare कर देंगे equation, comparing the equation x is equal to ct से कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन सी दिस वन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वेयर माइनस 1 वी अपॉन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1. ओके, तो so equation will be 1 plus v upon c is equal to 1 minus 1 upon k square minus 1 v upon c. So 1 plus v upon c is equal to 1 minus 1 upon k square plus 1 c upon v, sorry, this is the c upon v plus c upon v. Multiply करने after simplification v upon c k square is equal to cv c square minus v square. So equation will be cv upon c square upon 1 minus v square upon c square. So v upon c 1 minus v square upon c square. Taking only the पॉजिटिव साइन लेंगे तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. Okay, so this is next equation. Okay, this is the equation number 10th. So hence x will be कितना हो जाएगा x डैश जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है x डैश इज इक्वल टू था k x माइनस वी टी. सो k की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके, but we already y dash is equal to y and z dash is equal to z and t dash is equal to t minus vx upon under root 1 minus v square upon c square. So this equation are known as Lorentz transformation equation of space and time. So this is called the Lorentz transformation. But if we want to transform the coordinate from system S to S dash, then transformation equation will be, that means the inverse equation. The inverse equation will be, just change the x बराबर x is equal to x dash plus vt dash under root 1 minus v square upon c square. Then y is equal to y dash and z बराबर z dash and t बराबर
t dash plus vx. Vx upon c square upon under root 1 minus v square upon c square. So this is equation are known as inverse Lorentz transformation, and this is the Lorentz transformation.